बायलिंगुअल भी हो जी सकते जी, हैं। सही है। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good evening, हाँ, everyone, and welcome back to the session number 4, Founders Edge Program Cohort 3. So, today we are diving into one of the most critical aspects of building a startup, which is the scalability and early stage. So, to lead this session, we are honored to have with us a respected Faisal Saeed Saab, a highly accomplished leader with a wealth of experience. He is a founder of Prompt Evolution, working at the forefront of the generative AI and prompt engineering, the CEO of Inno Inc. and the United States, and he is also advisor, mentor, and investor too at Amden.pk. So his background spans around the building innovative tech-driven ventures, scaling companies, and guiding founders to think strategically about the growth. So please join me in welcoming our trainer for today, respected Faisal Said Saab. The floor is yours. thank you very much. So let me try to share my window. Can you guys see my presentation? Yes, we can. Okay, great. So yeah, thank you very much for giving me this opportunity here. Welcome to Aspire Pakistan, Founders Edge Cohort 3. As you already know, my name is Faisal Saeed. I actually have co-founded Silicon Valley startups, um, faced all these problems firsthand, gone through the whole startup cycles a couple of times. um, Thanks to Aspire Pakistan to ये उन्होंने अच्छा, मैं थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बेसिकली जो Aspire Pakistan ने ये प्रोग्राम रखा है to give you guys an opportunity to learn and avoid those mistakes जो कि मैंने और दूसरे early founders ने जो है जो है they have gone through it firsthand. So today's our topic is scalability at early stage. So basically, what we're going to talk about is to identify कि growth के कौन से business models हैं that we can adopt, or how can we avoid those scaling mistakes. So let's jump into our first topic, which is basically scaling trap. So usually what happens जब आप scaling का word सुनते हैं तो आप like this sounds like exciting word, like scaling means के okay, something is going good, but scaling could be dangerous. When I say that, what it means कि most of the जो startups होते हैं, they don't die because they fail to grow. They actually die because they grow in a wrong direction, or they grow too fast without having कि उनकी जो है कोई solid foundations नहीं बनी हुई होती हैं, and they try to actually run very fast, and that cause them a big trouble. तो इसमें बेसिकली मुझे एक्चुअली एक सिलिकॉन वैली का वीसी है, उसको बेसिकली टेक क्रंच ने वीसी ऑफ द ईयर भी अवार्ड किया था. He once said कि more startups die of indigestion than starvation. So just try to understand what it means. Actually, this is exactly what we are talking about here, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के पास जो है रिसोर्सेज भी होंगी, स्टार्टअप्स के पास जो है बेसिकली जो है उनके पास फंडिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर दे डोंट एक्चुअली स्केल इन अ राइट डायरेक्शन तो उन वो जो है इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव फॉर देम. तो हम बल्कि अगर हम देखें तो हमारे पास इवन पाकिस्तान में एक रीसेंट एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं बेसिकली एयरलिफ्ट की, राइट. I mean, they had this recent funding of $85 million. आप इमेजिन करें $85 million, इट मीन्स कि उनके पास पूरी रिसोर्सेज भी थी, उनके पास जो है बिग टीम भी थी एंड एवरीथिंग, लेकिन दे फेल बिकॉज दे स्केल इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. So let me make this a little bit interactive, this session, right? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, any of you is it okay, right, to ask question अगर मैं if they can answer those questions, maybe their input would be valuable.
Is that so? Their mics are open, right? Yes. Okay. So basically, what I want to ask is, what do you guys think scaling क्या चीज है? What do you consider जब scaling का word आता है तो what comes into your mind? कोई है जो brave enough to answer that? Okay. So let me dive into it. So अगर scaling के का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है like एक बड़ी टीम जनरेट कर ली है, या जो है आपने बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, या आपके पास जो है फैंसी ऑफिसेस आ गए हैं. इट डजंट मीन दैट, राइट? जो मैंने भी एग्जांपल दी एयरलिफ्ट की, जहां पे उनके पास दे हैड एवरीथिंग बट दे कुडंट सर्वाइव. सो एक्चुअली व्हाट स्केलिंग मींस इज के आप बेसिकली यू क्रिएट अ वैल्यू of your product. So that's basically what the scaling is. अब ये let's to understand कि इसका मतलब क्या है value creation. Let's identify some models, जो business model हैं जिसको को समझ के हम we can understand कि ये value creation का क्या मतलब है. तो जो scalable business होता है वो it's not the one जो कि basically as we discuss के उसके पास बहुत बड़ा office आ गया या बहुत बड़ी team आ गई, right? It's the one, yeah, agar value creation we want to talk about, it is the one where each additional unit of growth cost less than the previous one. So just try to understand, it's a little bit a mouthful hai, lekin ye ke agar aap koi cheez create kar rahe hain और वो अगर आपको कॉस्ट कर रही है मोर देन जो आपने प्रीवियसली उसको प्रोड्यूस करने पे स्पेंड किया था, देन इट मींस दैट यू आर नॉट स्केलिंग इन अ राइट डायरेक्शन. So, yeah. So let's find out. Let's dive into some of the models to understand it better. Um, look for leverage is first point that I want to talk about. What does it mean? Look for leverage का क्या मतलब है कि आपने एक product अगर बनाई है तो you want to make sure कि you get most out of it. And actually, I want to make it more interactive. Actually, that's what I remember. I did it in my first session. Okay, if people can want to ask any question, we'll feel free, please, to ask any question in between. So I would love to answer those. So I hope that you're understanding what I'm trying to explain here. कि क्या चीज basically why scalability is a trap. It could be a trap if it's not going in the right direction. So when I say this, look for leverage, it means कि आपने कोई अगर product बनाई है तो you make sure कि उससे आप जितना भी maximum profit जो है बना सकते हैं. Example उसकी अगर मैं technology के products को देखें तो SaaS model you're familiar with, which is basically software as a service. So what happens, like in a software as a service, you create the software, but you then आपको जो है उसके बाद उसके फायदा जो है थ्रू आउट मिलता रहता है. So to add more subscriber to your business जो है, it doesn't cost you that much, right? तो that's one example. या फिर आपने जो अपना सिस्टम ऑटोमेट कर दिया है तो उससे क्या होता है कि आपने इनिशियली स्पेंड किया लेकिन लेटर ऑन जो है आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती रहती है क्योंकि आपका सिस्टम ऑटोमेट है. इट विल जनरेट बिजनेस बट यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट मच ऑफ द मनी. The second point is test the 10x question. What is 10x question? I mean, I would actually like to hear from you guys. Let me explain what it is, and then I want to ask you, what do you think about it? So 10x question basically is कि आप जब tomorrow inshallah जब आपके 10x customers, let's say if you get them, right? Could you serve them without 10x the cost? That's basically you have to consider and you have to keep in mind कि अगर आपके कल जो है या in a month आपके जो number of customers हैं वो 10x हो जाते हैं तो do you have to spend the 10x money for that? Let's say for example अगर आज आपके 100 कस्टमर हैं उस पर आपको $1,000 स्पेंड करना पड़ रहा है तो लेट्स से कि कल आपके अगर 1,000 कस्टमर हो जाते हैं तो क्या आपको $10,000 में स्पेंड करने पड़ेंगे? तो that's basically is another major point, the model that you have to keep in mind to make sure कि आपकी scalability जो है वो in a right direction जा रही है. तो
I would love to ask you at this point. I want to find out from you guys कि अगर if you think of it कि वो आपके जो businesses हैं उसमें अगर कल इंशाल्लाह एकदम से एक surge आता है और 10x increment होता है आपके जो subscribers हैं customers हैं, तो वो कौन सी चीज है आपके business के अंदर जो कि break हो सकती है? Is it like an infrastructure that you did not build properly? या आपने जो है आपके पास इतने लेट्स से अगर ये डिलीवरी की सर्विसेज हैं तो आपके पास इतने हैं डिलीवरी बॉयज जो कि आपको या गर्ल्स जो उसको हैंडल कर सकें. तो these are basically the question that you have to keep in mind. And my what I was expecting कि I would hear from you guys कि अगर कल आपके पास अगर ऐसा होता है इस तरह की सिचुएशन, so what is that one thing that can break your system or if you're not ready for that? If anybody wants to jump in and can think of something that in their business they can think कि अगर कल उनके पास एकदम से 10x customer आते हैं तो how their system would break. Is there This So, anyone? is labor Mehdi issue. can Can I answer. ask? Can I जी answer? जी Yeah. please. If I Actually, have मेरा clothing, One by if I one have कर लें. Arif Mehdi, पहले आपने hand raise किया था. Yeah. You can answer and then we will move forward to the next participant. I'm sure. If Yeah. like if I have a clothing business and I get like 1,000 orders next day, but I don't have that much in my stocks, then that's a problem. Exactly. I mean, my next actually I forgot to mention कि अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोडक्ट है और आपका वेयरहाउस के अंदर इनफ इन्वेंट्री नहीं है, तो you have to make sure, otherwise you would lose it, right? I mean, the customer impression or customer experience जो होगा वो it would be very bad, right? तो ये एक चीज आपको माइंड में रखनी है. ओके, आप कहीं एक्साइटेड ना हो जाए कि ओह मेरे पास तो एक सारे कस्टमर ले लो सारे कस्टमर, and then later on in tomorrow you'll see, oh, I don't have enough inventory in my warehouse. How I'm going to cater those customers? That's very good example. Exactly. तो एक और Okay, Beenish Mahar. hello. Vinesh. जी, this is Beenish. Actually, sir, मेरा point of view ये था कि after sale services पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कस्टमर फेस करता है, खासतौर पे अप्लाइंसेज हों या कोई भी आप किसी भी उसके साथ वारंटी अगर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो स्केलेबिलिटी पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जी आफ्टर सेल सर्विसेज ज़्यादा मुतासर होते हैं. इवन ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी आफ्टर सेल्स का इशू सबसे ज़्यादा आता है. अप्लाइंसेज में ले लें आप, रेफ्रिजरेटर ले लें, तो मतलब लाइक वो सर्विसेज जो कही जाती हैं कि जी 2 ईयर गारंटी 10 ईयर गारंटी, वो उस पर कोई ऐसा काम नहीं होता उनकी तरफ से. इवन जनरेटर्स खराब होते हैं तो वो रिपेयर करने आते हैं, वो और डबल खराब करके चले जाते हैं. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो मेरे ख्याल से आफ्टर सेल सर्विसेज की होती है. एक बिजनेस मॉडल को उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि जी हमने वैल्यू क्रिएट कर दी, प्रोडक्ट में बहुत सी चीजें इंटीग्रेट की, प्रोडक्ट बेहतरीन बनाई, लेकिन उस प्रोडक्ट में अगर कोई गड़बड़ आती है तो उसका भी कुछ सद्देबाब होना चाहिए ना, उसका भी कुछ चीज होनी चाहिए, उसके बैकअप पे भी वो लोग होने चाहिए जो आफ्टर सेल्स की बात करें और उसको पूरा भी करें. तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था. Yeah, definitely, that's a very important point. क्योंकि that's exactly what we are talking about here. क्योंकि these are the things जो हम start में जो ना consider नहीं करते हैं और फिर बाद में जो है वो हमारी जो है scalability पे impact करती है. Exactly, बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया कि अगर हमने पहले से आपने एक कस्टमर सर्विस नहीं बिठाई हुई या आपने उसको पहले से सॉर्ट आउट नहीं किया हुआ कि भाई ओके अगर मेरे ये इश्यूज आते हैं तो मैं उसको किस तरह रिजॉल्व करूंगा या करूंगी, तो फिर जो है ऑफ कोर्स देन इट वुड बी अ बिग इशू आपकी जो स्केलेबिलिटी के अंदर है. वेरी गुड पॉइंट. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हम बगैर सोचे समझे ऑफर कर दें, लेट्स देन वी शुडंट बी ऑफरिंग दोज गारंटीज एंड वारंटीज, राइट? कि अगर हम वी कैन नॉट हैंडल इट, इफ वी आर हैंडलिंग इट और वी आर ऑफरिंग इट, देन वी शुड मेक श्योर कि हमारे पास पूरा सिस्टम है, जो हम अभी बाद में बात करेंगे कि जो है उसका सबसे बड़ा यही है कि आपका प्रोसेस सेटअप है, एक आपका जो है सिस्टम सेटअप है जो कि उसको हैंडल कर सकता है. तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एनीवन एल्स हैज एनी पॉइंट?
Okay. So yeah, these are very good points, and that's exactly what we are talking about. कि अगर हमने पहले से make sure नहीं किया हुआ कि जैसे वेयर हाउस के अंदर हमारे पास इतनी इन्वेंट्री मौजूद है, या हमारे पास अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं तो हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं जो कि उसको डिलीवर कर सकें, तो या फिर हमारे पास अगर हम वारंटी दे रहे हैं तो हमने अब पूरा सिस्टम सेटअप किया हुआ है जो कि उसको हैंडल कर सके, अगर नहीं तो आई मीन व्हाई वी आर इवन ऑफरिंग इट. So these are the things which make or break your startup. So these are very good points. Or you should all look at your जो भी आपकी प्रोडक्ट है कि उसमें ऐसी क्या चीज है जो कि अगर कल हमारे पास ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो I should be able to handle that. So these are very good points. So now let's move to our next point, which is basically a signals of scalability. वो क्या signals हैं जो कि आपको बताते हैं कि भाई okay, now I can say safely कि okay, मेरा जो business है या मेरा जो startup है, it's going in a right direction, it's scaling in a right direction. तो first of all, तो very obvious one जो है वो है basically आपका अगर high gross margin आप देख रहे हैं कि आपका रेवेन्यू इनफ जनरेट हो रहा है एंड इट गिव्स यू वेरी हाई ग्रॉस मार्जिन, देन ये तो बहुत ही ऑब्वियस सिग्नल है कि यू आर बेसिकली गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. नेक्स्ट इज अगर आपकी कॉस्ट जो है वो लो होती जा रही है, क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस लाइक इवन इन लाइक स्मॉल रिटेल बिजनेस के अंदर भी अगर आप बल्क में कोई चीज खरीदते हैं तो वो पहले आप अगर 10 खरीद रहे हैं, कल आप 100 खरीद रहे हैं, फिर 1000 खरीद रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो ऑटोमेटिकली लो होती रहती है. दैट इज अनदर गुड साइन कि आपका जो है बिजनेस गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, स्टार्टअप जो है गोइंग और स्केलिंग इन अ राइट डायरेक्शन. द अदर थिंग इज कि आपका रिपीटेबल बिजनेस है, कि आपकी जो है जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है. So it means कि you are actually kind of going in a right direction. उसके बाद फिर अगर आपके रिटेंशन रेट इज हाई है कि लोग आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपका चर्न रेट जो है इज वेरी लो, और तो इसका मतलब है कि इसके दो एक्चुअली फायदे हैं. एक तो रिटेंशन का मतलब ये है कि कस्टमर इज स्टेइंग विद यू एंड कस्टमर इज हैप्पी एंड दे आर कमिंग अगेन बैक टू यू. जो दूसरा उसका बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ. अगर वो कस्टमर आपसे हैप्पी है तो वो आपका जो है दूसरों को भी बताएगा. अब तो स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू दे कैन स्प्रेड द वर्ड. सो दैट्स लाइक अ ह्यूज आपका एसेट है बेसिकली टू हैव जो कस्टमर जो आप रिटेन करते हैं. तो यू हैव टू फोकस और मेक श्योर कि यू आर कीपिंग द कस्टमर्स दैट यू ऑलरेडी हैव. So these are basically some of the signals that can tell you कि जो scalability है, that's basically going in the right direction. So again, that we all talk about. Actually, एक disclaimer दे दूं मैं थोड़ी सी ना, I'm under the weather तबीयत थी, लेकिन so you have to bear with me a little bit. तो अभी हम लोग जो प्रोसेस की बात की थी, आई थिंक बिनेश ने शी मेंशन कि अगर प्रोसेस बिल्ड नहीं है तो जो ये स्केलिंग है ना, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड अ सिस्टम. इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम सेटअप, देन योर जो स्टार्टअप है वो सस्टेन नहीं कर सकता. द ग्रोथ और द स्केलिंग दैट यू ऑलरेडी हैव, दे कैन नॉट बी सस्टेनेबल. तो उसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस सेटअप करना पड़ता है. उसकी जबरदस्त एग्जांपल जो है बिनेश ने दी है कि अगर हमारे पास लेट्स से हमने पूरा सेटअप नहीं किया हुआ, उसको पूरा प्रोसेस नहीं बनाया हुआ और हमने वारंटी ऑफर कर दी है एंड पीपल आर कॉलिंग फॉर द वारंटी एंड वी डोंट हैव एनी सेटअप डन, तो आई मीन इट्स यू नो डिजास्टरस, राइट? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं to keep your business sustainable. उसमें ये इसके documentation और and delegation, right? तो what does it mean by that? So sometimes what happens कि आपका जो है let's say कि आप अगर sales कर रहे हैं या basically आपका जो है delivery model है या आपका basically जो onboarding process है या ये warranty process, या एक दफा आपने देखा कि वो आपका काम कर रहा है, तो you should document that, you should write it down ताकि आप उसको अगेन रिपीट कर सकें और उसको आप जो है एक प्रोसेस बना सकें उसके अराउंड में. क्योंकि अगर बेसिकली अगर वो सिर्फ आपके जस्ट एग्जिस्ट इन योर हेड, तो इसका मतलब है कि इट डजंट स्केल. अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ और सिर्फ यही सोचा हुआ है तो इट डजंट हेल्प एट ऑल. द सेम वे डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजुअली व्हाट हैपेंस इन जो फाउंडर्स होते हैं, दे वांट एक्चुअली कंट्रोल एवरीथिंग, दे वांट सी, क्योंकि दे आर वेरी एक्साइटेड, दे डोंट वांट गिव जो है डेलीगेट नहीं करना चाहते, क्योंकि दे थिंक कि अगर कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि दे you know very sensitive about every single component, every single part of their startup, right? तो
लेकिन that's another sign of failure, fail करें या फिर another sign of wrong scaling, क्योंकि एक बंदा जो है और एक person can handle so much, right? There is a limit. So you should always find a person in a team or जिस पे आप rely कर सकें and then delegate your work to them. So that's another important point. फिर उसके बाद next point आता है कि metrics over intuition. We heard these words के numbers never lie, right? So you should always rely on numbers rather than कि आप के जो है कोई guess work करें या आपकी जो है intuition को follow करें. उसके बजाय आप एक जो है metrics पे या numbers पे rely करें. You should definitely know your North Star metric. Do you guys understand what North Star metric is? Anyone has any understanding of North Star? Yeah. I heard someone. I Okay. said no. Okay, that's okay. Yeah. So basically, North Star metrics जो है आपका एक number जो कि basically capture the value that your product deliver, right? So try to understand that. क्योंकि वो number जो है आपको then you have to focus on that. It could be your ARR or GMV or your active users. Oh, when I say ARR means like annual recurring revenue that you're getting, or GMV means like आपके जो gross merchandise value होती है. तो वो कोई ऐसा नंबर है जो कि आपको लग रहा है जो जिसकी वजह से आपके जो है बेसिकली वैल्यू जनरेट हो रही है. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे एयरबीएनबी की लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर उनका जो नॉर्थ स्टार मैट्रिक हो सकता है वो कि उनकी नंबर ऑफ नाइट्स जो सेल हुई हैं, राइट? आई मीन दे आर I hope that you guys are familiar with Airbnb, right? It's in Pakistan as well. The same goes with the Spotify, right? उनका ये होता है कि okay, number of hours जो उनके song के हैं वो कितने sell हुए हैं. They have this metric which they can, rely on and see कि okay, their जो है growth is sustainable. इसी तरह अगर जैसे डिलीवरी का हमने एग्जांपल दी तो उसके अंदर आपका जो है नंबर ऑफ डिलीवरीज कुड बी योर नॉर्थ स्टार मैट्रिक. तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको देख के आप कह सकते हैं कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई शुड फोकस ऑन इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट गेसिंग कि ओ अच्छा अगर मेरे इतने कस्टमर हो गए तो इतना मेरा काम हो सकता है. या उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इट शुडंट बी जो है वो वैनिटी मैट्रिक नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ डाउनलोड्स आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डाउनलोड्स मीन नथिंग, राइट? लेट्स से अगेन अगर हम एग्जांपल लें जहां पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है या म्यूजिक तो फिर भी इट अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है तो इट्स नॉट नेसेसरीली कि सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल भी हुआ है, राइट? सो नॉट नंबर समथिंग दैट डजंट गिव यू लाइक अ डायरेक्ट वैल्यू, राइट? तो मेक श्योर कि आपका कोई ऐसा एक नंबर है या मोर देन वन जो कि आपको जो आपकी प्रोडक्ट है वो वैल्यू डिलीवर कर रही है उसके बेस के ऊपर. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद फिर बेसिकली है रिपीटेबल प्लेबुक्स. व्हाट डज दैट मीन, राइट? अगेन इट गोज बैक टू दैट पॉइंट व्हिच बीनेश रेज के अगर वारंटी ऑफर की हुई है या किसी किस्म की सर्विसेज ऑफर की हुई हैं तो ऐसा ना हो कि जो है वो रिपीटेबल ना हो. You have to make sure कि it's repeatable, you have a process defined and it's documented. तो मतलब let's say कि अगर आपका sales का एक process है जिसमें आपने एक script define की हुई है कि whenever you are going to a customer, you are actually telling them certain things, right? So that script जो है throughout वो consistent है आपकी startup में या company के अंदर या organization के अंदर. Same way अगर हम वारंटी की एग्जांपल लें कि आपने वारंटी का एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है, let's say कि if you are delaying that, you have this certain script, consistent script that can satisfy customer कि okay if it's delaying उसका कोई reason है जो आपका जो है basically defined हो, pre-defined, pre-scripted. तो वो आपका जो है एक playbook होनी चाहिए जिसके अंदर you define all those steps, those जो कि आपके repeatable steps हों.
जिसमें आपका लेट्स से कि आप हायर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस है कि अब एक सर्टन प्रोसेस से जो है कैंडिडेट को गुजरना पड़ेगा, तो वो आपका एक रिपीटेबल कंसिस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। इसी तरह जो है आपकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी डिफाइन होनी चाहिए, या अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक रोड मैप है वो एक पूरा डिफाइंड है कि ओके दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू टेक टू रीच टू दिस सर्टेन गोल। तो वो सिर्फ जो है ना सिर्फ हवा में नहीं होना चाहिए, दैट हैज टू बी there has to be some playbooks where you have to actually define all those repeatable processes. उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग जो आपको you have to keep an eye on is the unit of economics. That's very important क्योंकि आपका पूरी स्केलिंग जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स पे। यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है कि बेसिकली एंड आई थिंक यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू इन डिटेल्स ऑन यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं थोड़ा सा टच करता हूँ इस पे कि आपका लेट्स से कि कैक जो होता है, जो कैक जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आई होप दैट यू गाइस आर फेमिलियर विद दैट, द कॉस्ट दैट आपको स्पेंड करनी पड़ती है टू एक्वायर अ कस्टमर, टू गेट अ कस्टमर, राइट, दैट हैज टू बी लेस देन जो कि कस्टमर जो LTV कहलाता है, लाइफ टाइम वैल्यू, और समटाइम्स इज कॉल्ड CLTV व्हिच इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका ये यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है दैट्स नॉट ब्रोकन, कि आपका जो कस्टमर को एक्वायर करने में आपको जो है ह्यूज अमाउंट लग गई, लेकिन जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो उससे बहुत लेस है। तो आप एक सर्टेन टाइम तक तो मे बी सर्वाइव कर सकेंगे, लेकिन आफ्टर दैट यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो अगेन ये इट गोज बैक टू द सेम पॉइंट जो हमने अर्ली भी डिस्कस किया कि अगर आपके कस्टमर्स आ रहे हैं या आपका जो है एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, इट डजंट मीन कि स्केलिंग हो रही है। आपको जो है स्केलिंग हैज टू बी इन अ राइट डायरेक्शन, व्हिच इज ये एक जो यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। So after, like, let's say processes and everything are put together and everything seems to be working, what are those things we discussed कि भाई वो traps जो scaling के थे, लेकिन what are those mistakes जो कि आप avoid कर सकते हैं? So we should understand those mistakes better, so आपको जो है you make sure कि you don't do that again and again, right? So उसमें सबसे पहले बेसिकली आता है प्रीमेच्योर स्केलिंग। तो प्रीमेच्योर स्केलिंग क्या होता है कि बेसिकली अगेन आई गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ एयरलिफ्ट, right? You try to hire too fast before your product market fit, right? So understand that कि जैसे जो एयरलिफ्ट की एग्जांपल है कि उन्होंने जैसे उनको फंडिंग मिली उन्होंने हायर करना शुरू कर दिया विदाउट मेकिंग श्योर कि उनकी प्रोडक्ट मार्केट फिट है या उनका जो प्रोसेस हैं वो सारे डिफाइंड वेल डिफाइंड हैं, एंड दे एंड अप शटिंग डाउन देयर डोर्स। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप की जो फंडिंग आ गई है तो यू डोंट जस्ट गो आउट एंड स्टार्ट हायरिंग क्रेजीली, राइट? यू मेक श्योर फर्स्ट कि आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है कि नहीं है। इसी तरह स्टार्ट स्मॉल, start with a single market. It's not कि आप जो है start expanding into like multiple market at once, like and too early. So you will do it when a right time comes, but not like in the beginning that you said, okay, why don't I just go to 10 markets at once? That's not a right way to handle this. Balki if you're familiar with lean startups and MVPs, right? That's like the concept is just to tackle this problem. क्योंकि lean startup का मतलब ये है कि you start lightweight, you start small, and then you expand. First, you make sure that your product is market fit. आपके पास जो आप जो है scale कर सकते हैं properly. आपका जो है एक सिंगल जो मार्केट है जो आपकी जो सबसे ज्यादा लगता है आपको जिस मार्केट में आप penetrate कर सकते हैं उस मार्केट से आप स्टार्ट करें, एंड देन यू एक्सपैंड टू द अदर नेबरिंग मार्केट्स, एंड देन यू एक्सपैंड टू ग्लोबल मार्केट्स. इट्स नॉट कि आप जो है राइट अवे स्टार्ट कर दें एक्सपेंडिंग क्रेजीली. any Okay. So basically, the other point here is कि आप let's say कि आपने features जो आपने 20-30 features add कर दिए अपनी product के अंदर without making sure कि कौन सा feature है जो कि customer जो है would take it and would be willing to pay, right?
So this is another जो value creation का सबसे बड़ा point ये होता है कि जो product आपने develop की है वो जो है customer want that product or not, right? And customer is willing to pay for that product, right? And then scaling basically comes after that when you take this product to multiple customers, to many customers without incurring the equal cost, right? That's what we've been discussing. So we make sure कि हम जो है premature scaling को avoid करें. We make sure कि पहले small start करें and then we expand. The other thing, the other point जो mistake we should avoid is confusing growth with scaling, as we've been discussing, right? Growth अगर आपकी team बड़ी हो गई है या आपने जो fancy offices, it doesn't mean कि आप जो है scale कर रहे हैं, right? क्योंकि growth तो जो आप अगर paid advertisement दें तो आपके पास customer, maybe you start just see the growth, but that's not like a positive growth, right? Because if your unit economics are broken, then basically you're buying losses. So that scaling will multiply your losses. सही है. So जो unit economics की हमने बात की कि आपका let's say कि आपने advertise कर दिया, customer आना शुरू हो गया, लेकिन आपका जो infrastructure is not capable of handling that much load, या फिर जो है आपने कस्टमर तो लिया है लेकिन जो है वो आपको कॉस्ट डबल कर रहे हैं, then they can actually give you return. So you have to make sure that you're not confusing your growth with scaling. So yeah, growth doesn't mean that you are scaling. Growth can be, the big team can be considered as okay, you're growing, your team is growing, but it doesn't mean that you're scaling. So we should keep all those in mind. The other point which I'm also keep mentioning कि ignoring infrastructure, कि आपका जो infrastructure है वो handle भी कर सकता है वो सारा load. अगर आपका कल load बढ़ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी infrastructure जो आपने बनाया है वो सिर्फ आपकी जो double customer हो जाए उनको सिर्फ handle कर सकता है, right? जैसे वो आरिफ ने भी example दी थी कि उनके अगर warehouse में सिर्फ उन्होंने इतना इन्वेंट्री रखी हुई है जो कि आज अगर उनके 10 कस्टमर हैं तो कल अगर 20 हो जाते हैं तो 20 को तो एटलीस्ट हैंडल कर लें. नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट 10x कस्टमर को वो हैंडल कर सके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर. या आपका जो है अगर टेक्निकल और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दे कैन हैंडल जो बैक एंड सर्वर है वो आपका लोड हैंडल कर सकता है कस्टमर का. ऐसा तो नहीं है कि अगर कल 10x कस्टमर हो जाते हैं तो आपका सिस्टम ही बैठ जाए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू एयरलिफ्ट type of businesses where they did not pay attention to those things and it got overloaded and they had to then shut down. So these are the things that you make sure that your infrastructure is capable of handling your load. And infrastructure means anything, your servers, as I mentioned, your warehouse has the enough capacity, or as Binesh mentioned about आपने अगर warranty दी हुई है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास इतना आपने उसको सॉर्ट आउट किया हुआ है कि हाउ टू हैंडल दैट थिंग कि अगर कल एकदम से कस्टमर का सर्ज आता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूनिंग. इफ यू आर नॉट प्रूनिंग मींस के लाइक डेड वेट जो फीचर्स होते हैं, मतलब फीचर्स जो कि आपने बना दिए हैं लेकिन उनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा. इसी तरह आपके कस्टमर्स, जैसे कि आप कस्टमर्स तो बहुत सारे लेकर आ गए लेकिन मतलब आपके डाउनलोड्स तो बहुत सारे हो गए लेकिन कोई जो है उनको यूज ही नहीं कर रहा. या अगर रिटेल की एग्जांपल लें कि आपके जो है कंसाइनमेंट पे आपने जो है वो प्रोडक्ट तो मार्केट में डाल दिया लेकिन कोई उसको खरीद नहीं रहा, राइट? तो इस तरह की चीजें आप व्हाट यू हैव टू लर्न कट अर्ली. एक और जो इसमें है जैसे कि एम्प्लॉइज, बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कि आपको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आपको मेक श्योर करना है, दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ मेकिंग श्योर कि आप यूर स्केलिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि अगर आपके पास एम्प्लॉइज हैं जो कि आपको बेनिफिट नहीं कर रहे हैं और आपके पास अगर ऐसे कस्टमर हैं जो आपको बेनिफिट नहीं कर रहे हैं या आपके ऐसे फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर जो आपको बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड मेक श्योर कि यू कट देम अर्ली, right? You should be brave enough to go and say, no, I mean, I can actually work with this lesser customers, which are actually giving me more benefit than I have like thousands of customers to just show कि भाई मेरे पास 1000 customers हैं.
right? So you have to make sure that you learn to cut early as possible. Any questions so far? Anything जो कि confusing हो या समझ में नहीं आ रही हो, या कोई ऐसी चीज जो कि you want me to maybe double click on or give you more detail? Okay. I think now we get over. एक क्वेश्चन आया है फैसल साहब, जी जी जी. शॉर्ट क्वेरी आई है कि व्हाट इज द, जस्ट अ सेकंड मैं रिपीट करूंगा, व्हाट आर द अर्ली प्रेडिक्टर्स ऑफ स्केलिंग? अर्ली प्रेडिक्टर जो आपको अभी बताया था ना कि बेसिकली अगर आपके मार्जिन, आपने जैसे मार्केट में गए हैं, राइट, सबसे बेस्ट जो अर्ली इंडिकेटर है कि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया ना, वो आपको जो है बेनिफिट दे रही है, और वो आपको कॉस्ट कर रही है लेस देन जो कि आपने प्रीवियसली डेवलप करने में उस पर कॉस्ट लगाई थी. ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि अगर आप कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, आप सेल करने मार्केट के अंदर गए और आप ये देख रहे हैं कि वो आपको कॉस्ट मोर कर रही है देन आपने जब पहले उसको बाय किया था, या पहले जब आपने उसको प्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था, तो इट मीन्स के यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, राइट? या सेकंड साइन ये है कि अगर आपने मार्केट में प्रोडक्ट को लेके गए एंड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट, आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन जो है आपके ख्याल में आपने ये सोचा कि इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, लेकिन वंस यू टेक इट टू द मार्केट देन यू सी के जो है जो people are not willing to pay for it. Maybe they are willing to use it for free, but they are not willing to pay for it. That's another early sign. इसीलिए जो emphasize है, बल्कि आपने अगर ये concept आपको पता हो कि जो MVP का concept होता है कि first you actually go in the market, take your MVP, your prototype into the market. You start with a small market, your beachhead market, where you think कि आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो सकती है. वहां आप लेके गए अपनी प्रोडक्ट को, आपने देखा कि कौन सा ऐसी चीज है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं. देन यू कम बैक एंड फोकस ऑन दैट थिंग. हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 3 फीचर्स हो, आप समझ रहे हैं कि ये एक फीचर जिस पर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा. आप वो मार्केट के अंदर लेके गए, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा, लेकिन आपके जो 2 दूसरे फीचर्स थे जिसको आपने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, उसको लोग ज्यादा जो है यूज कर रहे हैं. तो आप क्या करें, you should actually then come back and focus on those 2 features more. तो जो ये कुछ early signs हैं जो कि आपको पता चल सकते हैं, लेकिन again you have to avoid going too fast in the market, right? आपको slowly जाना पड़ेगा in the beginning. जो हमने emphasize भी किया कि it's not कि आप start hiring too much, और सबसे पहले आपको ये check करना है कि आपकी product market fit है कि नहीं है, और वो आपको इंडिकेटर दे देती है कि आप जो है स्केल कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कि नहीं कर रहे हैं. अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट फिट है, या देन यू गो एंड हायर मोर पीपल जो आपको जिनकी नीड है. देन यू गो टू द अदर मार्केट्स. पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बीच हेड मार्केट से. बीच हेड मार्केट का मतलब होता है कि आपकी जो फर्स्ट मार्केट जहां आप यू थिंक के आपकी जो प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा सेल हो सके. लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज बनाई है, तो आपकी बीच हेड मार्केट होगी आपके लोकल एरिया के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो उसके डॉर्म्स हैं. लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट मार्केट फर्स्ट, and then you go to the other universities in your area, and then you go to the adjacent cities के अंदर जो आपकी universities हैं उसके अंदर आप जाएं. So that's how actually you test it out and you know कि okay जो है आपको वो इंडिकेटर वहीं से मिलना शुरू हो जाता है कि your product is scalable or not. Is it good? To answer your question, or did I confuse you more? Any other question? Anything? जी सर, अब्दुल बासित है सर. मेरा एक क्वेश्चन है जी कि सर जब आप कह रहे हैं कि कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, तो जी नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा कि जब कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास तो दे आर ब्रिंगिंग इन मोर बिजनेस, मोर रेवेन्यू, और हमने जब शुरू में मॉडल बनाया था तो हमने ये देख लिया था कि ये प्रॉफिटेबल है, तो मोर कस्टमर्स आने से अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो रेवेन्यूज भी तो बढ़ रहे हैं, तो उससे कोई इशू तो नहीं होना चाहिए. इसको डेफिनेटली सर नहीं. काइंडली एक्सप्लेन करते हैं.
जी. So that's yeah, good point, very good point. तो basically when I talk about it, right, कि एक आपका CAC जो basically these are the things which you have to actually make sure के happening, right? जब मैंने बात किया था कि आपका unit of economics, right, unit economics की जो बात की थी, उसमें यही आपको देखना होता है कि the other way around तो नहीं है कि आपके कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन वो आपको कॉस्ट आपकी उसकी ज्यादा है। आपकी कॉस्ट, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके कस्टमर, ऑफ कोर्स आप यू हैव टू एक्चुअली आपके कस्टमर जो बेस है उसको आपको इंक्रीज करना है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है, वो आपका जो कस्टमर जो आपके आ रहे हैं उसके जो एलटीवी, जो लाइफ टाइम वैल्यू है, उससे जो है कम होनी चाहिए। देन या यू आर इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। आपके जितने भी कस्टमर आ जाएं, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक कस्टमर जिसको आपको जो है एक्वायर करने में जो कॉस्ट लग रही है, जैसे कि आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट लग रही है, जैसे आपको मार्केट पे आप $1000 स्पेंड कर रहे हैं एक कस्टमर को गेट करने के लिए, लेकिन वो कस्टमर से आपको $100 बना के दे रहा है। तो यू कैन डू द मैथ, राइट, कि अगर आपके पास कल 1000 कस्टमर आ जाते हैं तो जो है आपकी कॉस्ट जो है वो तो 1000 टाइम्स लग गई है, लेकिन वो आपको बना के जो है वो 1000 टाइम लेस दे रहे हैं, तो ऐसे तो आपका बिजनेस स्केल नहीं कर सकेगा, राइट? तो यू आर वेरी राइट सर। या यू आर वेरी राइट कि आपको, लेकिन यू फर्स्ट मेक श्योर कि आपका जो कैक है, जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट है, वो आपकी जो है कहीं उससे ज्यादा तो नहीं है। जैसे आपको मल्टीपल टाइम्स आई ट्राई टू एम्फसाइज के आपका जो एट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ग्रोथ जो होता है ना, जो आपकी एडिशनल यूनिट ऑफ ग्रोथ मींस कि जो चीज आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, वो जब आप नई चीज, नया आप कस्टमर लेने जा रहे हैं, तो वो आपकी बढ़ तो नहीं रही है, वो आपकी लो ही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने एक और भी दी थी कि आपका रिटेल की अगर एग्जांपल ले लें, जब आप कोई बल्क में कोई पैकेज, बल्क में चीज खरीदते हैं तो आपको ऑलवेज सस्ती पड़ती है, जबकि आप अगर कोई इंडिविजुअल चीज बाय करने जाएं तो वो आपको चीप पड़ती है, राइट? तो उसका यही है कि आप जब आपके कस्टमर जितने ज्यादा आते जाएंगे, आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है कम होती रहेगी। जिसमें मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके कस्टमर रिटेन कर रहे हैं, अगर आपका रिटेंशन रेट इज हाई, तो वर्ड ऑफ माउथ से आपकी जो है जो आपकी मार्केटिंग हो रही है, राइट? तो उसमें ये हो रहा है कि आपकी कॉस्ट हार्डली एनीथिंग, कुछ भी कॉस्ट नहीं लग रही, लेकिन आपके जो कस्टमर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ स्केलिंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो बासित ठीक है सर। जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। एक आपने बार बार बिल्कुल सही मेंशन किया कि आर वी रेडी, जो हमारा स्टार्टअप है, इज इट रेडी फॉर द एक्सपेंशन, और एकदम से कस्टमर्स आ जाएं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ज़हन में बार बार ये बात आ रही थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते। जैसे जूम की मिसाल थी कि वो पहले एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, कोविड आया तो एकदम उनकी जो कस्टमर बेस है दैट लिटरली एक्सप्लोडेड। और दूसरी बात ये कि हम अपने अभी हमारा छोटा बिजनेस है, हम थोड़ा सा ज्यादा कस्टमर्स के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कॉस्ट भी तो करेगा। अभी कस्टमर कम है लेकिन हमने ज्यादा कस्टमर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो दैट विल बी कॉस्टिंग अस। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बता रहे हैं। जी। तो सी अगर आप देखें ना, तो मेरा जो लास्ट पॉइंट जो मैं रैप अप कर रहा हूँ ना, इसका लास्ट पॉइंट अगर आप रीड करें, हम अभी उसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये आपका जो है ना परफेक्ट आंसर देगा, जो आपकी मेरी लास्ट में, अगर आप मेरी स्लाइड देख रहे हैं, जो लास्ट है कि ग्रो ओनली एज फास्ट एज योर सिस्टम कैन हैंडल। मतलब ये कि आप एकदम, यही सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ का, जो आपकी स्केलिंग के अंदर जो डिजास्टर्स या मैनेज का डेंजरस साबित होता है, वो यही है कि आप अगर देखें कि आपके 1000 कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम जो है, अगर जूम जो है उसका अगर सिस्टम केपेबल नहीं होता, एकदम से जब उनका सर्ज आया था, तो वो फेल कर जाते हैं, फिर नोबडी वुड बी यूजिंग देयर सिस्टम, राइट? तो आपने पहले मेक श्योर करना है, और या तो आप प्राइस अपना बढ़ा दें। जब आपने देखा कि इतने सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा अपने प्राइस को सर्च कर दिया कि ओके, ताकि कस्टमर जो है ना, जिस तरह आप अगर देखें अमेजॉन या ये दूसरी जो सर्विसेज होती हैं, ये क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है उनकी बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है, या सॉरी जो उनकी बहुत ज्यादा फेमस होती है, उसको वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट लाते हैं। ये एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो व्हाट डू यू वांट टू मेक श्योर कि अगर आपकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो यू ट्राई टू प्ले अराउंड विद दैट,
कि यू डोंट वांट टू हैव मेनी कस्टमर्स जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल ही ना कर सके। तो दैट्स हाउ यू बेसिकली मेक श्योर कि अगर आप या तो आपने अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो कि इजी टू स्केल है, सिस्टम का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने जो है उसमें सिर्फ बहुत ही क्विकली आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे ही आपके पास कस्टमर आए, देन यू आर फ्री टू गेट एज मेनी कस्टमर्स एज यू वांट। लेकिन अगर आपका सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता है तो यू मेक श्योर कि आप सिर्फ क्रेजीली कस्टमर्स ना लेना शुरू कर दें। आपको उस पर थोड़ा सा जो ना फिल्टर लगाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि भाई आपके पास कस्टमर उतने ही आ सकें जितना आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है। देन यू एक्चुअली फिक्स योर सिस्टम एंड देन स्टार्ट गेटिंग मोर कस्टमर। अदरवाइज होगा ये कि कस्टमर का अगर एक्सपीरियंस एक दफा बुरा हो गया तो फिर दे विल नॉट कम बैक टू यू, राइट? तो आई होप मैं अभी उस पॉइंट पे गया नहीं था, लेकिन अगर आप मेरा लास्ट पॉइंट रीड करें तो ये एग्जैक्टली आंसरिंग योर क्वेश्चन कि ग्रो ओनली एज फास्ट एज योर सिस्टम कैन हैंडल। सो डोंट ग्रो क्रेजी देन। अगर आपके पास कल आज आपके पास 100 कस्टमर हैं और कल आपका जो सिस्टम है वो 500 लोगों को हैंडल कर सकता है, लेकिन कल अगर 1000 कस्टमर आ गए हैं तो यू शुड देन पुट अ ब्रेक ऑन इट। आप दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हैं कि आप थोड़ा, जब आपके पास 400 कस्टमर आ गए तो उसके बाद जो है आप ये करें कि उसकी थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर दें, या डिफरेंट वेज हैं, देयर सम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि आपको किस तरह आप अप एंड डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर जी, एक्सप्लेन्ड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। या तो अब्दुल बासित, तो यही चीजें हैं बेसिकली, वेरी गुड पॉइंट यू रेज, कि यही चीजें हैं जिनको आपको ना यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपके पास एकदम से सर्ज आ रहा है तो यू डोंट जस्ट गो आफ्टर देम। एंड दिस इज द रीजन आप देखें एयरलिफ्ट लाइक $85 मिलियन सीरीज, $110 मिलियन उनके टोटल उन्होंने रेज किया था, और 85 मिलियन मेरे ख्याल में जो सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान में होगा जो उन्होंने रेज किया एक सिंगल उसमें 85 मिलियन। एंड वेयर आर दे राइट नाउ? तो हुआ यही कि दे जस्ट वेंट क्रेजी आफ्टर दोस कस्टमर्स जो भी आ रहे हैं विदाउट एक्चुअली मेकिंग श्योर कि वो उनको हैंडल भी कर सकते हैं। उनकी जो इश्यू हो रहे हैं, जो आपको बेसिकली रिटेंशन को फिक्स करना है, जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर यू नो फिक्सिंग देयर प्रॉब्लम्स फर्स्ट। जैसे बीनेश ने भी पॉइंट रेज किया था कि आप जो वारंटी आपने ऑफर की हुई है, ये नहीं कि आपने वो आप कस्टमर को तो एक्वायर करने में लगे हुए, लेकिन जो वारंटी आपने ऑफर की थी उसको आपको हैंडल करने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो फर्स्ट जो आपके कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको आपने पहले रिटेन रखना है, और उसकी सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको पहले जो मेंशन किया कि वो फिर वर्ड ऑफ माउथ से भी आपका जो ना बिजनेस इंक्रीज करता है। तो दीज आर द थिंग्स एग्जैक्टली, दोज आर द पॉइंट्स। जब आप स्टार्टअप फाउंडर होते हैं तो आप देखते हैं कि ओह मेरा ग्रो कर रहा है, मेरी जो टीम बढ़ना शुरू हो गई है, मुझे इतनी सारी फंडिंग मिल गई है, let's go crazy, let's go to like 20 markets at once. No, I mean you have to start lean and then you have to expand. So is there any other question? So let's wrap it up के जो takeaways हैं from this whole discussion, right? कि जो हमने वही points जो आप लोग बार बार रेज भी कर रहे हैं और जिस हमने पूरा डिस्कशन किया, आई थिंक वी हैव टू गो बैक एंड जो है ना इन सारे पॉइंट्स को आपने देखना है, क्योंकि एग्जैक्टली दैट्स द प्रॉब्लम दैट I personally faced. Like we just, when we see customers are coming, then you just don't care कि आप कहते हो आने दो, right? But that shouldn't be the case. आपका infrastructure, आपका जो है सप्लाई, वो सारी चीजें जो हैं इन ऑर्डर होनी चाहिए टू हैंडल दोस कस्टमर्स जो कि आ रहे हैं, वरना यू शुड मेक श्योर कि यू डोंट ग्रो दैट फास्ट, यू जस्ट ट्राई टू ग्रो स्लो लेकिन प्रॉपरली, दैट एक्चुअली गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें जिसको जैसे अगर हम सम अप करें तो जो टेक अवेज हैं फ्रॉम दिस होल डिस्कशन, इसके प्रूव दैट द बिजनेस मॉडल इज ट्रूली स्केलेबल। जो हमने बातें की कि भाई आपका कैक जो है वर्सेस CLTV, जो आपका यूनिट इकोनॉमिक्स है, दैट्स इट्स नॉट ब्रोकन, इट्स प्रॉपर, राइट? जो है आपका जो चीज आप डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, या ऐसा ना हो कि आपके पास कस्टमर आ गया तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप करना पड़ रहा है। इट मींस कि इट कॉस्ट यू मोर देन जो आपके कस्टमर वैल्यू ब्रिंग कर रहा है, राइट? फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बिल्ड लाइट वेट रिपीटेबल प्रोसेस, राइट? आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोसेस है वो रिपीटेबल हो, वो आपके डॉक्यूमेंटेड हो। आप जो है डेलीगेट करने जो है थोड़ा सा डेलीगेट करें अपने वर्क को, इंस्टेड ऑफ लाइक कीपिंग एवरीथिंग टू योरसेल्फ।
फिर उसके बाद अगेन जिस पॉइंट पे हमने अभी लास्ट डिस्कस किया है कि ग्रो ओनली एज फास्ट एज योर सिस्टम कैन हैंडल. दिस इज अ वेरी important point, and that's where we all fail. क्योंकि जब हम देखते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं, और देयर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक करीम है, या हमारे आप लोगों को पता होगा फ्रेंडस्टर करके एक ऐप होती थी फेसबुक से भी पहले, उनके 100 मिलियन कस्टमर्स थे, लेकिन they didn't focus, they grow very fast but their system could not handle that much load. उनके फिर जो कस्टमर को रिस्पॉन्सेज जो थे वो वेबसाइट पे जा रहे हैं, उनको जो है they're stuck and all that, so they start leaving because they didn't pay attention to those their system, their infrastructure. There are 100 million subscriber. That's Facebook से भी पहले की बात है. मतलब these are so many examples out there in the market जो कि आपको इसकी examples दे सकते हैं. So you have to make sure this is, I think if one point I would want to emphasize is it's this one जो अब्दुल बासित आपने भी raise किया कि you should not grow then that fast. अगर आपके पास एकदम से surge आ रहा है customer का, you should try to throttle that. So this is basically, I think, it. We can now open a platform for general question and answer if there are any, or anything that you don't understand. And I survived to